नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। सवाल इस बात को लेकर है कि जब विदेशी दौरे पर शशि थरूर और ओवैसी ने आईना दिखा दिया तो क्या कांग्रेस को यहां पर समझ में आया? ओवैसी थरूर जैसे विपक्ष के बड़े चेहरे पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल रहे हैं तो सन्नाटे में मोदी विरोधी क्यों है? सवाल यह भी कि शशि थरूर और ओवैसी जैसे नेता ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर खुलकर भारत का पक्ष दुनिया के सामने रख रहे हैं, फिर यह बात भारत में सरकार और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को समझ क्यों नहीं आती? सवाल यह भी है कि जब पूरा देश आतंक के खिलाफ एकजुट है तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अलग अलग लाइन क्यों ले रखी है? क्या लगातार सवाल और विवादित बयानबाजी से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर नहीं हो रही? आखिर आतंक विरोधी इस लड़ाई में सियासत बेलगाम क्यों है? करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एक साथ विदेश दौरे पर हैं, दूसरी तरफ देश के अंदर मोदी सरकार पर विपक्षी दलों का प्रहार थमता नजर नहीं आ रहा। विपक्ष के पिटारे में एक से एक आरोप और सवाल है। सिया पार्टी मोदी सरकार को घेरने के लिए एक अलग लाइन पर खड़ी है, जबकि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर खुद सरकार के डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। शशि थरूर ने अमेरिका की धरती पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी तो दी ही, साथ ही यह भी कह दिया कि पाकिस्तान से युद्ध करने में भारत की कोई रुचि नहीं, लेकिन भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा बल्कि करारा जवाब देगा। India sent a clear message, number one, that it was not going to take terror lying down, it would answer, but equally that by delivering very precisely calculated, calibrated strikes on very specific targets, it was also sending a message that it was not meant to be the opening salvo in a protracted war, but just an act of retribution, that we were prepared to stop with that act. We are not interested, and we still remain absolutely clear that we are not interested in warfare with Pakistan. We would much rather be left alone to grow our economy and pull our people into the world that they're getting ready for in the 21st century. That the Pakistanis have. Sadly, we may be a status quo power, they are not. They are a revisionist power. They covet territory that India controls, and they want to have it at any price. And if they can't get it through conventional means, they're willing to get it through terrorism. That is not acceptable to us. शशि थरूर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सरकार और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने की बजाय कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान ही सुन लेते। आतंक विरोधी इस लड़ाई में कम से कम ओवैसी से ही सीख लेते। मोदी सरकार को सबसे ज्यादा घेरने वाले ओवैसी आतंक विरोधी लाइन में सरकार के साथ खड़े हैं। बहरीन में ओवैसी ने दुनिया को संदेश दिया कि इस लड़ाई में पूरा भारत एकजुट है। ओवैसी ने पाकिस्तान को irrespective of whatever political affiliations we belong to, yes, we have a political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands, and I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan in grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists. Problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. No difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it, because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it says killing of one innocent person is like killing of whole humankind. सभी दलों के सांसदों का डेलीगेशन भारत का पक्ष मजबूती से दुनिया के सामने रख रहा, पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा, लेकिन देश में अलग ही सियासत हो रही। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में ट्विटर वॉर चल रहा, सवाल जवाब थमने का नाम नहीं ले रहे। अब कांग्रेस नेता अलका लामा ने तो ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन ब्लू स्टार बता दिया, जिसे बीजेपी जानबूझकर सेना का अपमान बता रहे।
एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए और उसकी अध्यक्षता आप करिए। हम मांग करते हैं कि ये समय की मांग है, जरूरत है कि संसद के दोनों सत्रों को शीघ्र बुलाकर ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पूरी व्यापक देश को जानकारी सरकार के द्वारा दी जाए। सेना का अपमान यही तो कांग्रेस की पहचान। करो पाकिस्तान का गुणगान, दो शरीर एक जान, कांग्रेस और पाकिस्तान। देखिए, आज फिर से सेना का अपमान किया। अलका लांबा ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन ब्लू स्टार बता रही है। मतलब कि उन्हें बेसिक जानकारी नहीं है या जानबूझकर लगातार सेना पर यह हमला किया जा रहा है। टेरर को ट्रेजेडी बोलना, व्हाइट वॉशिंग करना, ऑपरेशन सिंदूर को ब्लू स्टार बोलना, ये कांग्रेस ने अपना असली चरित्र दिखा दिया है। ये सेना विरोधी है। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी तो प्रधानमंत्री मोदी के लहू नहीं गर्म सिंदूर वाले बयान पर तंज कस रहे। ब्लड में सिंदूर होना गलत बात है। पहली बार मैं सुना हूँ, कोई भी सुनेगा तो आश्चर्यचकित हो जाएगा। भाई हम तो कल से सुने तो हम सदमे में हैं, हमको नींद नहीं आया रात भर। कैसे भाई सिंदूर कैसे चला गया, खून में सिंदूर कैसे चला गया? तो मैं थोड़ा भयभीत है, आश्चर्यचकित है। हम चाहेंगे कि मोदी जी के खून से सिंदूर निकाला जाए। सियासत विपक्ष की तरफ से ही नहीं, विवादित बयान बीजेपी की ओर से भी आ रहे हैं। अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विवादित बयान दिया। जांगड़ा ने कहा, अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव व जोश नहीं था, इसीलिए 26 लोग गोली का शिकार बने। बाद में सफाई देते हुए जांगड़ा ने कहा, उनका मकसद युवा पीढ़ी को मोटिवेट करना था। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। तो आतंकवादी थे, उनको तो मारना था, वो तो मारने के लिए आए थे। हाथ जोड़ने से सबको छोड़ने वाले तो थे नहीं। बस यही संदर्भ था मेरा कि अगर ऐसी परिस्थितियां कभी आए भी तो हम मुकाबला करें उनका, बस ये मेरा संदर्भ। वो कोई मतलब निकाले, लेकिन मेरे लिए मैं आज की जो युवा पीढ़ी को मोटिवेशनल तरीके से अहिल्याबाई के जीवन के बारे में बता रहा था। इससे पहले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर विवादित बयान दिया था। अब सवाल है, आतंक के खिलाफ लड़ाई में जब पूरा देश एकजुट है तो ऐसे में भले पक्ष हो या विपक्ष, आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? सवाल ये भी है, क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर सियासत भारी? तो सवाल ये उठता है कि थरूर ओवैसी जैसे बड़े नेता जो जाने जाते हैं मोदी विरोध के लिए, वो कह रहे हैं सरकार की लाइन ठीक है, उसके बावजूद यहां पर क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शिवरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, प्रोफेसर अनवर पाशा हैं आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, सोमनाथ भारती हैं पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में राधिका खेड़ा जी आपसे कर लेता हूं। मैं थरूर और उनकी जो लाइन है, कांग्रेस नई सबक सीख रही, आ रहा हूं, लेकिन मैडम आप लोगों ने भी क्या कोई हार्ड लाइन नहीं ले रखी है? कोई नेता आ जाए, उठकर कुछ भी बोलकर चला जाए। रामचंद्र जांगड़ा पहले कुछ कर बोलते हैं, सफाई फिर कुछ और देते हैं। राधिका खेड़ा है हमारे साथ। चलिए ठीक है, जैसे राधिका खेड़ा आती है मैं उनसे यह सवाल करता हूं। एक बार नेटवर्क में कुछ दिक्कत हुई, उससे ठीक करिए। अजय वर्मा जी आपसे सवाल है, थरूर ओवैसी बातें कुछ समझ में आई आप लोगों को कि सरकार की लाइन क्या है? वो सरकार की लाइन ठीक है? सीज फायर को लेकर शशि थरूर ने जो कहा, क्यों सीज फायर हुआ? देखिए पांडे जी, शशि थरूर साहब को अमेरिका में स्पेशली
एक प्लान के तहत भाजपा ने भेजा। कांग्रेस ने जो नाम दिए थे, पार्टी की एक लाइन होती है, ये पार्टी का एक सिस्टम है, पार्टी की एक नीति है, नीति निर्धारण कमेटी है, एक नाम निर्णय लेके भेजा। लेकिन मोदी जी के आईटी सेल और मोदी जी ने क्या किया कि चूंकि ट्रंप लगातार इनके खिलाफ है, कभी टैरिफ की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि युद्ध हमने रुकवा दिया, कभी कहते हैं दोनों व्यापार हैं, कभी अमेरिका को पाकिस्तान को महाशक्ति और भारत को महाशक्ति बराबर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कभी अब कहने रहे हैं कि मैं अगर आपने कंपनी नहीं हटाई कुक टीम को, एप्पल वाले को, तो मैं आपके ऊपर इतना टैरिफ लगा दूंगा। तो कि अमेरिका में हम जान के शशि थरूर साहब हमारे नेता हैं, कांग्रेस के सांसद, भेजा गया कि अगर वहां कोई भी 19-20 बात थरूर साहब करते हैं या कोई चीज होती है या ट्रंप रिएक्शन करेंगे तो हम कह देंगे कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को हमने भेजा है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है। तो ये भाजपा की क्रोनोलॉजी है, सोची समझी रणनीति के तहत ओवैसी और शशि थरूर को सिस्टमेटिक संघ के तहत भेजा गया है, ना कि नहीं ये इतनी अच्छी। अब आप आ जाइए रामचंद्र जांगड़ा पर आऊंगा। वो पहले बीजेपी के हिस्से का सवाल था, राधिका खेड़ा से जवाब दूंगा, फिर उस पर डिबेट कर लूंगा। अभी आपके हिस्से का जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, ये कहां से इतनी सोच लेकर आ गए कि शशि थरूर ओवैसी को इसलिए भेज दिया कि जाकर 19-20 कुछ बोल दें। नहीं, मेरा सवाल इस बात को लेकर है, शशि थरूर ने कहा ऑपरेशन सिंदूर एक प्रतिशोध था, वो पूरा हो गया, उतना ही टारगेट था, टारगेट अचीव कर लिया, हमारा फोकस इकोनॉमी पर है, भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था आज की डेट में ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया। तो आपको दिक्कत सर इस बात से है? एक जापान से आप तुलना कर रहे हैं, केवल एक पॉइंट के फर्क से जापान का, अरे है ना, जापान की एक पॉइंट से आदमी फेल पास हो जाता है। नोएडा, दिल्ली, 100 में 33 की जगह 32 नंबर आ जाए तो फेल हो जाएगा आदमी यूपी बोर्ड में, दिल्ली या किसी भी बोर्ड में। आपके नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, मुंबई, महाराष्ट्र, मद्रास, कलकत्ता, बनारस, इन सबकी तस्वीर आपको भेज रहा हूं, तुलनात्मक अध्ययन। हम ये कह रहे हैं भारत बड़े, हमें बड़ा सीना गर्व से चौड़ा होगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बने, हमें उस पर बन जाएंगे सर ना। ये भी ट्रेंड है अजय वर्मा जी की यही ट्रेंड ग्रोथ रेट बनी रही तो 2028 तक आपके मुंह में घी शक्कर, तीसरी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान, अगर यही ट्रेंड बना रहा तो। पांडे जी, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है सर, आपको और औरों को, देखिए आपको और औरों को क्या बताएं, पूछे आप, पूछे बताइए। मैं पूछ तो रहा हूं कि जब पाकिस्तान पर देश ने एक लाइन तय की तो आपकी सियासत की मजबूरी है कि उस लाइन के अगेंस्ट हम चले जाएंगे। नहीं, हमने ऐसी कोई लाइन नहीं बोली, हम ना सेना के खिलाफ थे, लेकिन जब आर्मी के फोटो में, आर्मी की ड्रेस में पहन के नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचवा रहे हैं और पेट्रोल पंपों में फोटो लगवा रहे, पेट्रोल पंपों पे देखिए जाके पोस्टर आर्मी, अरे भाई सेना के जवान का लग जाता। और तो राकेश पांडे, आप कश्मीर गए थे, मैं कह रहा हूं आपका फोटो लग जाता, क्योंकि आप युद्ध में लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी जी युद्ध लड़ने बॉर्डर पे नहीं गए थे, छोड़िए ना सर, मेरे पर समझ लीजिए, आपका फोटो लग जाता, हमें खुश। नहीं, आप अपनी पॉलिटिक्स रखे रहिए भाई, पूछे हम, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अपनी फोटो कहीं लगवाने में और अपनी आपके हिसाब की पॉलिटिक्स करने में। लेकिन राधिका खेड़ा एक रिप्लाई करिए, लेकिन उससे पहले नहीं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, आप रखे रहिए भाई, अपनी सियासत अपने तक रखिए, मेरे तक मत लेकर आइए, वरना उतना ही स्ट्रांग पलट कर आएगा अजय वर्मा जी, नहीं जवाब दे पाएंगे। अब राधिका खेड़ा नहीं है, नहीं है सियासत ना सर, आप अपनी फोटो चिपकाइए। चलिए राधिका खेड़ा जो अजय वर्मा ने कहा उस पर रिप्लाई, लेकिन मैडम उससे पहले मेरा सवाल रामचंद्र जांगड़ा को लेकर है, और सवाल यह कि क्यों नहीं कार्रवाई हो जाती है। विजय शाह में आप लोगों ने अभी तक एक्शन नहीं लिया, अगर ले लिए होते तो रामचंद्र जांगड़ा को ना तो पहले बयान देने की हिम्मत होती है, ना उसके बाद उस पर सफाई देने की नौबत आती। सभी को नमस्कार। देखिए, जांगड़ा साहब ने जो कहा उसकी उन्होंने माफी मांगी और मैं बहुत कड़ी निंदा करती हूँ, और इस बात से बिल्कुल भी ना मैं ना मेरी पार्टी ताल्लुक रखती है, उनको ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। अब वो क्या कहना चाहते थे, क्या कह दिया, सभी एक जिम्मेदार पद पे है और उनको जिम्मेदारी से अपने शब्द बोलने चाहिए, और ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि माफी मांगनी पड़े। लेकिन माफी मांगी गई है, मैं उस बात को भी जस्टिफाई नहीं कर रही कि माफी मांग दी तो बात खत्म हो गई। और जहां तक आपने बात करी हमारे मंत्री साहब की मध्य प्रदेश के, तो वो केस कोर्ट के अंदर है, और मैं लगातार आपके शो पे भी कह चुकी हूँ और हर शो पे यही बात बोल रही हूँ कि वो कोर्ट में है, और हम चाहते हैं कि कोर्ट अपना फैसला सुनाए, और कोर्ट को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि आगे से कोई भी
ये सबके लिए लागू हो जो हमारी सेना के जनरल को गली का गुंडा कहते हैं, जो खून की दलाली कहते हैं। क्या कर रही है? मंत्री पद से अभी तक क्यों नहीं बीच हटाया? में नहीं बोली 75 थी। करोड़ क्या है महिलाओं ना, को राहुल गांधी अपमानित ने करा है। लोगों को 2 दिन पहले यही ट्रेनिंग दी है कि बीच में जाके की फुदक सेना फुदक को के बोले। अपमानित करा है। राकेश जी, आप इस आदमी को म्यूट कर दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती और ना मैं इस तरीके की जंग पर ठीक, मैं आता हूं बीच में। अजय वर्मा जी सुनिए सर, सुनिए ना प्लीज प्लीज सुनिए। आप बोल रहे थे राधिका खेड़ा सुन रही थी, मैं नहीं कह रहा हूं आप काउंटर मत करिए, लेकिन लगातार मत बोलिए। किसी को किसी के बीच में काउंटर करना है तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाया करे, अधिक वही बोले जिसकी बारी है। बेसिक डिबेट्स की एटिकेट्स होती है, प्लीज वो इन हो लोगों गया। को अजय वर्मा जी लगातार नहीं, आपने एक लाइन का काउंटर करना था, कर लिया। अभी राधिका खेड़ा को सुनिए प्लीज। नहीं, मैं नहीं बोल रहा। हाँ ठीक है, ये झूठ बोल सर आप भी बहुत सच नहीं बोल रहे हैं, आप भी सच नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, सच की दुकान आपने भी नहीं खोल रखी है। राधिका खेड़ा बोलिए। हालात है कि 100 पार नहीं कर पा रहे हैं, झूठों के सरताज राहुल गांधी बने हुए हैं और आप उनके प्रवक्ता। लेकिन वापस मुद्दे पे आते, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए गली के गुंडे आर्मी के जनरल को गुंडा कहने के लिए, जो लोग माफी नहीं मांगते। खून की दलाली राहुल गांधी कह देते हैं जब आतंकियों को ढेर किया जाता है, तब बालाकोट स्ट्राइक के बाद सबके बाद तब भी माफी नहीं मांगते। लगातार ऐसे ऐसे अलग अलग शब्द आए हैं जिसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी गई है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे नेताओं ने माफी मांगी तो उनका गुनाह खत्म हो गया, नहीं। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए और जो भी कोर्ट फैसला लेगा हम उसके निर्णय के साथ हैं। अब आते हैं बाकी चीजों के ऊपर। देखिए ना, कितने हास्यास्पद स्थिति कर दी है और कितनी बेशर्मी हो चुकी है कि आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा कोई छोटी नेता नहीं है। दूसू की अध्यक्ष रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी है, सोमनाथ भारती जी की पार्टी से बड़ी नेता है और प्रवक्ता है बहुत पुरानी, कोई 15-20 साल 25 साल की छोटी बच्ची नहीं है कि उनकी से स्लिप ऑफ द टंग हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार कह देना ऑपरेशन सिंदूर को। मतलब क्या राहुल गांधी आजकल अपने प्रवक्ताओं को यह भी बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला जाना है, क्योंकि इतिहास की जीरो जानकारी